مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، آقا پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت محمد عالم تیرا پروانہ۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کو ہم معتکفین کے تاثرات و جذبات احساسات بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں معتکفین کیا کہتے ہیں۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں۔ فرسٹ ٹائم آیا یہاں پہ۔ میں خود کو بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا۔ والدین کہہ رہے ہیں 1 ماہ کیا آپ ساری عمر بلی یہاں فیضان مدینہ میرے نیکیاں کریں۔ اعتکاف میں نے فرسٹ ٹائم کی ہے۔ اچانک ہی بس خیال آیا کہ پتہ نہیں آئندہ کہ رمضان دوبارہ ملے نہ ملے زندگی میں، بس یہ سوچ کر کے ملا۔ جو سیکھنے کی چیز پہلے سیکھے نہیں تو اب سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ 22 سال میں کبھی تراویح نہیں پڑھی تھی، ماشاءاللہ سے پوری تراویح پڑھا۔ پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا کہ عشرت چاشت کیا ہے، نماز ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہاں پہ جب آئے تو ہم کو پتہ چلا۔ اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا ابھی مسواک کیا چیز ہے یا کیا کرنا ہے یا ادھر کیا ماحول ہوئے گا، یا پہلی زندگی جو گزاری ہے جانوروں طرح گزاری ہے، نماز سیدھی نہیں، روزہ سیدھا نہیں، ساڈا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے زندگی یہ دوبارہ نہیں شروع ہوگی اب سے۔ یہاں پہ وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے جو ایک انسان کو آنا چاہیے، صرف شرعی مسائل نہیں، جینے کا طریقہ، باہر آپ کو کیسے رہنا ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے، دکانداری پہ کیسے رہنا۔ میں بالکل مدنی بننا چاہتا ہوں، بالکل مدنی دعوت اسلامی جیسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں بالکل اس طرح بننا چاہتا ہوں۔ باپا کے مدنی مذاکروں سے بہت سی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جن کا پہلے شعور ہی نہیں ہوتا تھا، مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی سیکھنی چاہیے بندے کو۔ اتنے لفظ ہیں نہیں میرے پاس کہ ہمیں اتنا کچھ یہاں پہ مل رہا ہے کہ آج تک ہمیں ملا ہی نہیں، کبھی کہیں ملا ہی نہیں ایسا۔ بابا جی نے والدین کا احترام بتایا، ان کے بغیر نہ ہی زندگی اچھی ہے نہ آخرت۔ میں نے مکان کے لیے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، جیسے وہ کمیٹی نکلی ہے میں نے مکان کو روک کے اپنی والدہ کو عمرے پر بھیج دیا ہے۔ بس اب محبت جاگی، ان سے معافی بھی مانگی ہے، ان سے ساری غلطیوں کی معافی تلافی کر کے میں انہیں عمرے پر بھیج کے خود فیضان مدینہ میں آ گیا۔ مذاکرے سن کے نا
बस 12 माह का मैंने इरादा कर लिया, ईद से बाद मैं 12 माह के लिए जाऊँगा साहब। अमीर सुन्नत जो है आधी रात को भी इल्म का ख़जाना बांट रहे हैं। आज के दौर में ऐसा कौन होगा जो इतनी आधी रात को इल्म का ख़जाना बांटे। जिनकी बातें सुन के, जिनको देख के अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुसलमान होते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में मुसलमान राह रास्त पे आ रहे हैं। बहुत बड़े नसीब की बात है कि हमें ये अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है कि हम यहाँ पे आ सकें उनके साए में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बापा की आदत है, जो बात होती है एक एक लफ्ज़ वही बताते बापा, ना थोड़ा यहाँ करते ना थोड़ा वहाँ। जो अल्फाज होते माना तो समझा देते, लेकिन अल्फाज भी वही समझाते बापा। ये बापा की बहुत प्यारी आदत है, माशाल्लाह में बहुत पसंद आती है। इखलाकी तौर पे तरबियत बताएं तो जितना हमारे सगे माँ बाप नहीं करते ना, उससे बढ़कर ये टाइम दे रहे हैं हमें। पहले की ज़िंदगी हमारी कैसी गई है, अफसोस होता है कि हम लोगों ने इससे पहले के माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करी, मतलब उस तरीके से बातचीत नहीं कर रहे थे, आप जनाब से बातचीत नहीं करते थे। मगर जब से यहाँ से आए वो हम लोगों को एहसास हो गया कि माँ क्या है और बाप क्या है और बड़ा भाई क्या है। ये ज़हन यहाँ पे आके बना है, फैज़ान मदीना में आके बना है ये ज़हन हमारा, और पापा ने हमें बताया। मैं अपने वालिदैन की बात नहीं कोई सुनता था, ठीक है, यानी कि मेरा जो लहजा था ना वो बहुत ही अलग टाइप का था, ठीक है। तो ये मैंने नियत किया है कि मैं अपने माँ बाप के साथ कभी भी इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि उनकी दिलादारी हो। दीन तो सीखने को मतलब दुनिया सीखनी मिलती है यहाँ पे कि दुनिया के अंदर रहना किस तरह से है। जिस दिन से आया निगरानी शुरा के जितने भी बयान आते हैं ना, तो वो हिला देने वाले बंदे को, अंदर से हिला देते हैं बंदे को। क्या क्या कुछ पहले होता था, अब उनसे तौबा किया कि कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, आए, बाहर खेलने चले गए, तो इतना मदनी चैनल देखते नहीं थे। इधर आके निगरानी शुरा का जो बयान सुने ना, अब जो सीखने को मिला ना, पहले कभी नहीं था इस तरह का ज़हन बना। मैं समझता हूँ कि दावत इस्लामी के अलावा कोई ऐसी तरबियत नहीं दे सकता, दावत इस्लामी इज़ द बेस्ट। फैज़ान मदीना है, वाकई फैज़ान है मदीने का। जब नात मुस्तफ़ा चलते हैं तो अल्लाह का नाम है मदीना मदीना हो जाता है ना, माशाल्लाह माहौल बिल्कुल चैन हो जाता है, बंदा हर कोई झूमने लग जाता है। तसव्वुर में मदीना पहुंच गया, वाकई में ऐसा फील होता है। हम यहाँ फैज़ान मदीना आके हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हम मदीने ही पहुंच गए हैं। अच्छी लोग यहाँ नियत करके जा रहे हैं, ये बेनिफिट नहीं है तो क्या है। लोग इमामा से जाके जा रहे हैं तो बेनिफिट नहीं है तो क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से इधर आया हूँ तो नियत की है कि इधर जामे तो मदीना में दाखिला लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर पर मामा शरीफ बांधूंगा, दाढ़ी रखूँगा, मदनी हुलिया मुकम्मल करूँगा इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना। नियत करता हूँ कि मैं हमेशा मिसवाक इस्तेमाल करूँगा और दूसरों को भी इसकी दावत दूंगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल नियत की, पक्की नियत किया किसने। अब मैं इंशाअल्लाह ताला ये पक्का रखूँगा अपने पास। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की पूरी नियत की है मैंने इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह गर्दन उतरेगी, दाढ़ी नहीं उतरेगी इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे और भले जज्बात आपने हमारे मुतक़िफ़ीन इस्लाम भाई को सुने। ज़ाहिर है कि ये जब घर से चले होंगे तब भी इनके अपने अपने जज्बात और एहसासात होंगे, लेकिन यहाँ दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक इतना खूबसूरत और इतना दिलकश और इतना अपनायत वाला मदनी माहौल बन जाता है अल्लाह की रहमत से कि इस्लामी भाई घर बार छोड़कर आते हैं मगर यहाँ दिल लग जाता है। और फिर आप ये देखिए कि किस कदर वालिदैन के हवाले से इनके जज्बात मुस्बत हो रहे हैं। अगर घर बैठे वालिदैन देख या सुन रहे हों तो ऐसे पुरफितन दौर में जहाँ माँ बाप को इस बात की बड़ी शिकायत है कि हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती, हमारी फर्मा बरदार नहीं है, उन्हें तो फ़ौरन चाहिए कि ना सिर्फ ख़ुद दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं बल्कि अपने बच्चों को भी, अपने मदनी मुन्नों को, अपने मदनी मुनियों को दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता कर दें ताकि ये घर मिसाली घर बने, ये घराना मिसाली घराना बने। और जब घराना मिसाली बनेगा तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा भी मिसाली माशरा बनेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक इस्लामी भाई ने फरमाया कि मेरा जी चाहता कि मदनी हुलिया सजा लूँ, मदनी बन जाऊँ, इस्लामी भाइयों की तरह बन जाऊँ। तो अब देर क्या है, यहाँ जितनी आसानी है मदनी हुलिया निभाने की, बाहर तो आजमाइश है। तो इसलिए आप भी से कर लेंगे ना तो यहाँ निभाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बाहर इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। तो कल ही कोशिश करके, कल क्या बल्कि आज ही यहाँ मतलब बाहर दुकानों पर सिले सिलाए मदनी सूट मिल ही जाते, इमामा शरीफ भी मिल जाता है, सब कुछ तासुर देने वाले आपको सुन भी रहे हो। अगर ये तो होंगे इंशाअल्लाह, तो हिम्मत करें। और आज ही अब एक बुजुर्ग ने मिसवाक दिखाई, वो मिसवाक मुझे एक बालिश से बड़ी लग रही थी,
तो उसको नाप लें, क्योंकि एक बालिश से बड़ी मिसवाक होती है ना, उस पर शैतान बैठता है, बाहर शरीयत में लिखा है। तो इसलिए उसको एक बालिश होनी चाहिए, जायद हिस्सा इसका काटना होगा। इनसे लिए वो काट देंगे, इनको कोई मुश्किल नहीं होता, औजार होता है इनके पास, कट जाएगी। या चाहें तो 2 हिस्से कर ले तो भी एक बालिश से कम हो जाएगी। माशाल्लाह अच्छे अच्छे जज्बात, अच्छे अच्छे तासुरात थे। और माँ बाप के ताल्लुक से, बहन भाइयों के ताल्लुक से जो यहाँ जज्बात बन रहे हैं, काश सारे ही माँ बाप अपनी औलाद का यहाँ रुख करें, क्योंकि आजकल तो इतनी खराबियाँ आ रही है कि माज़अल्लाह ओल्ड हाउस बनते जा रहे हैं, जिसमें बूढ़े माँ बाप को लोग डाल आते हैं। इनको रहम नहीं आता अपने माँ बाप को, कि माँ बाप अगर बुढ़ापे की वजह से कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, झगड़ा कर देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। तो हम छोटे थे तो हम क्या नहीं करते थे, हमारा तो गंद भी उठाते थे माँ बाप। माँ बेचारी, हमको बुखार आता था तो रात रात भर सोती नहीं थी, हमको बहलाती रहती थी। हम जो भी करते थे, पेशाब वगैरह, तो हमारा वो जो बिस्तर है, कपड़े, ये माँ ही तो धोती थी। आज उसी माँ को होल्ड हाउस में डालाते हैं। जरा गौर तो करे, बनेगा क्या? तो माँ बाप चाहे तंग करें, कुछ भी करें, बुढ़ापे में होता है ऐसा कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन आप इनका एहतराम करें, इनकी खिदमत करें, तो ठंडा करें और इनके सामने ज़बान ना खोलें, चुपचाप बस सुन लें। अगर ये जलाल में आ जाएं तो आप नीचे निगाह रख कर सुनेंगे ना, तो बात बढ़ेगी नहीं। जवाब देंगे तो वो ज़्यादा गुस्से में आएंगे। फिर आप जवान उठें, जवान खून है, तो फिर माँ बाप के साथ खुदा ना खादा कोई जुल्म कर बैठे तो आखिरत दाव पे लग जाएगी। बल्कि एक रिवायत में तो आम बूढ़ों के लिए भी है कि मुसलमान जो बूढ़े मुसलमान का एहतराम करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला इनके बुढ़ापे में एहतराम करने वाले पैदा कर देगा। ये मजमून है। तो बुजुर्गों का, बूढ़ों का, बूढ़े मुसलमानों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे होते हैं तकलीफ़ों में होते हैं, तरह तरह के अमराज इनके साथ वाबस्ता होते हैं। यक बुढ़ापा औसद ऐब, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है इनको, भूल भी जाते हैं। तो इनके साथ जवानों का जो रवैया है ना, वो अदब आदाब वाला होना चाहिए। मजाक उड़ाने वाला, इनकी हंसी उड़ाने वाला या इनको मतलब इग्नोर करने वाला नहीं होना चाहिए। इनको नुमाया जगह दें। खाने पर भी अगर आपके थाल में होते हैं, इनको पेश करें, आप बोटी दें, आलू दें, इनका दिल खुश करें बेचारों का। इसमें कई बुजुर्ग यहाँ होते हैं ना, इनके औलाद से दुखे हुए भी होंगे, ऐसे भी होंगे जिनको औलाद लिफ्ट नहीं देती होगी, जो मदनी माहौल से दूर होगी, तो ऐसा होता होगा। तो यहाँ कर भी अगर आप इनको ठुकराएंगे तो बोलेंगे यार यहाँ तो मजहबी माहौल है, हमारे घर में तो चलो नहीं हुआ। तो ये लोग भी ऐसा करते हैं, मौलाना होकर हमारे साथ ये सलूक करते हैं, कितना दिल दुखेगा। तो हमें मुसलमानों का दिल खुश करके, राहत पहुँचाकर अपनी आखिरत बेहतर बनाते चले जाना चाहिए, किसी को दुखाना नहीं चाहिए। तो जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं मोतकिफ, अगर आप सब खिदमत करेंगे ना, इनकी मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इनको ला कर दे दें, कोई बात नहीं, भले इनके पास पैसे हैं, आप ला कर दे दें, आप इनके दिल की दुआएं लें। इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इसका सिला मिलेगा, खुशहाल हो जाएंगे आप। और आप जब बूढ़े हो गए ना, अगर ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए, तो इंशाअल्लाह कई नौजवान आपकी खिदमत में होंगे, खिदमत करेंगे आपकी। फिर जो सुकून आप महसूस करेंगे ना, वो आप समझेंगे, अभी समझ नहीं आएगी। बूढ़ा है, जल्दी चल भी नहीं सकता बेचारा, वो इस्तिंजा खाने में आ गया तो वहाँ भी देर तक बैठा हुआ है, निकल नहीं रहा, ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। बल्कि कोई बुज़ुर्ग अगर लाइन में इस्तिंजा खाने की हों भी ना, तो मौके की मुनासबत से आप देखें ना, तो आपस में मशवरा दूसरों का कि यार इनको पहले बेचारों को दे दें। कि बाद बूढ़ों का ऐसा होता है कि वो मामला जो निज़ाम लूज़ हो जाता है, ये पेशाब भी इनका ज़्यादा देर तक ये रोक सकें ज़रूरी नहीं है, कपड़े ख़राब हो सकते हैं इनके, दोनों तरफ से कपड़े ख़राब हो सकते हैं।
कि जो भी बुढ़ापे की दहलीज पर होता है उसको इसका हो सकता है कि मेरी बात समझ में आती होगी, जवानों को नहीं आएगी। लेकिन मैं जो कहता हूँ मुझ पर आपका बहुत सारों का एतमाद है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मैं आपके भले की बात करता हूँ। मैं कहाँ लाइन में लगा हूँ आपके साथ कि मेरे को आप पहला नंबर दे दें, मैं तो इन बुजुर्गों की हमदर्दी कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जो कोई जवान किसी बूढ़े का उसकी उम्र की वजह से एहतराम नहीं करता मगर अल्लाह उसके बुढ़ापे पर उसे मुकर्रर करेगा जो इसका एहतराम करे। माना वो ये जो मैं पहले अर्ज कर चुका कि जो जवान किसी बूढ़े का एहतराम करेगा इसके बुढ़ापे में अल्लाह ताला किसी जवान को मुकर्रर कर देगा, उसके दिल में डाल देगा। वो जवान इस बूढ़े का एहतराम करेगा जिसने अपनी जवानी में किसी बूढ़े का एहतराम किया था। वो तहतुल लफ्ज तर्जमा है ना, तो समझ नहीं सकते आम लोग। शरह भी इसकी, हाँ शरह, यानी जो शख्स बूढ़े मुसलमान का सिर्फ इसलिए एहतराम करे कि उसकी उम्र ज्यादा है, उसकी इबादत मुझसे ज्यादा है, ये मुझसे पुराने इस्लाम वाला है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में वो देख लेगा कि उसके बुढ़ापे के वक्त लोग उसका एहतराम करेंगे। इस वादे में फरमाया गया कि ऐसा आदमी दराज उम्र भी पाएगा, दुनिया में माल ऐश इज्जत भी उसे मिलेगी, आखिरत का अजर उसके अलावा है। खुद इस हदीस के रावी हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। देख लो कि इनकी उम्र 103 साल हुई। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 103 साल की हुई। दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनको मिली थी। तो ये 10 साल की उम्र से खिदमत में थे। 10 साल की उम्र से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे और 10 साल तक खिदमत करते रहे। तो इनको अल्लाह ताला ने 103 साल तक दुनिया में जिंदा रखा। इनकी जिंदगी में यानी सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में इनकी औलाद की तादाद 100 हुई। 100 औलादें हुई इनकी, यानी औलाद और औलाद की औलाद, इस तरह यानी जैसे कि बेटे तो पोते तो नवासे तो पर नवासे तो तर पोते, इस तरह 100 की तादाद पहुंच गई औलाद की। एक मखलूक ने इनसे अहादीस रिवायात की, जहां पहुंच जाते थे लोग उनकी जियारत के लिए जमा हो जाते थे। यह है इस हदीस पाक का ज़ुहूर और उस वादा नबवी की जीती जागती तस्वीर और तफसीर। यह मिरात शरीफ की जिल्द 6 में इस तरह का मजमून है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरीके मक्का से अहमद बात कर रही हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की नियत कर ली है और मैंने लब्बैक भी पढ़ लिया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पापा जानी मेरा आपसे सवाल है, हम लोग लब्बैक पढ़ना कब बंद करेंगे? पापा जानी मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए और काफिर वालों के लिए दुआ फरमा दे। माशाअल्लाह। मुफ्ती अली असगर की शहजादी, ये सब मदीने पहुंचे हुए हैं। अभी तो मक्के शरीफ में शायद एहराम बांधा हुआ है एमन अत्तारिया ने। सवाल या
लब्बैक कहना कब बंद करेंगे ये? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। लब्बैक तो एहराम की हालत में लब्बैक कहना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, सबसे बड़ा इसका जिक्र है समझो। अब मुहरिम का मुहरिमा का जो एहराम में है, जब ये उम्रे वाले हजर अस्वद का पहला इस्तिलाम करेंगे, पहली बार हजर अस्वद को चूमेंगे या हाथ के इशारे से या तो करेंगे, तवाफ जब शुरू करेंगे उम्रे का पहला इस्तिलाम करते ही इनकी लब्बैक जो है मौकूफ होगी, यानी अब ये लब्बैक नहीं पढ़ेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा एक सवाल है, तवील क़याम करना अफजल है या ज़्यादा रकातें पढ़ना? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। नमाज में क़याम तवील होना यानी ज़्यादा देर तक नमाज में खड़ा रहना, ये कसरत रकात यानी ज़्यादा रकातें पढ़ने के मुकाबले में अफजल है। यानी जब के किसी वक्त मुअय्यन तक नमाज पढ़ना चाहे, मसलन 7 मिनट तक नमाज पढ़ना चाहे, तो 2 रकात में उतना वक्त खर्च कर देना 4 रकात पढ़ने से अफजल है। 7 मिनट में 4 रकात भी पढ़ सकता है और 2 भी पढ़ सकता है, तो ये नफल है, तो इसमें 2 रकात पढ़े तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, 4 पढ़े तब भी जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ये जुज़इया बहार शरीयत हिस्सा 4 जिल्द अव्वल हिस्सा 4 पेज नंबर 667 666 पर देखा जा सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शहरयार अयूब अत्तारी इटली के शहर विचेंजा से अर्ज कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि अपने घर या दुकान के लिए मस्जिद या मदरसे के वाटर कूलर से पानी भरकर ले जाना कैसा? अगर इमाम या मुअज्जिन की इजाज़त हो तो इसके बारे में क्या हुक्म है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। नाजायज़ है, इमाम और मुअज्जिन इसके मालिक नहीं होते। ये पानी कूलर में ये वहाँ के लोगों के पीने का होता है, नमाजियों के लिए। मुअज्जिन, खादिम या इमाम बल्कि मुतवल्ली भी चंदे की इन चीज़ों को खिलाफ शरीयत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। चंदे के बारे में सवाल जवाब पेज नंबर 57 पर यह मसला देखा जा सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सूर्य से बोल रहा हूँ, आपसे अर्ज ये है कि जादू के असरात खत्म करने के लिए कौन सा वजीफा पढ़ा जाए? ला इलाहा इल्लल्लाह 101 बार 101 बार पढ़कर सेहर ज़दा यानी जिस पर जादू किया गया हो उस पर दम कर दिया जाए, यही लिखकर धोकर पिला दिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सेहर यानी जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। बीमार आबिद नामी रिसाला है मकतबतुल मदीना का, उसके पेज नंबर 28 पर से ये देखा जा सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मेरा सवाल ये है, इंसानी सेहत के लिए धूप किस कदर अहम है? जिसमें इंसानी के लिए धूप की बड़ी अहमियत है। घरेलू इलाज
मकतबतुल मदीना की छोटी सी किताब है, उसके पेज नंबर 14 यानी 14 पर है, जिसमें इंसानी की सेहत के लिए धूप का अहम किरदार है। एक कहावत है, जिस घर में सूरज दाखिल नहीं होता उसमें डॉक्टर दाखिल होता है। बेशुमार जरासीम ऐसे होते हैं जो धूप और ताज़ा हवा से मर जाते हैं। चुनांचे जिन घरों की खिड़कियां महज गर्दो गुबार, धूल मिट्टी के खौफ से, डस्ट के खौफ से हर वक्त बंद रखी जाती हैं और उनमें धूप और ताज़ा हवा नहीं पहुंच पाती, वहाँ तरह तरह के जरासीम परवरिश पाते और खूब बीमारियां फैलाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पश्तो सवाल उर्दू खुलासे के साथ। मुसलमान ता इसारे सवाब सरा खुशहाली मिलावी। इन इस्लामी भाई के सवाल का खुलासा ये है, क्या मुसलमान को इसारे सवाब से खुशी हासिल होती है? बराए करम इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। फतवा रज़विया जिल्द 9 पेज नंबर 600 पर है, मुसलमान मय्यत को जो सवाब पहुंचाया जाए उसे पहुंचता है और इस यानी सवाब पहुंचाने से ज़्यादा खुश होता है, जैसे हयात में यानी ज़िंदगी में तोहफा भेजने से। और उससे यानी मय्यत को मालूम होता है कि मेरे फलां अजीज़ दोस्त या मुसलमान ने भेजा है। हम जब इसाले सवाब करते हैं जिसको, तो उनको सवाब भी पहुंचता है और उनको पता भी चलता है कि किसने भेजा है। फ्रेंड ने भेजा है, ब्रदर ने भेजा है, मदर ने भेजा है, फादर ने भेजा है, मस्जिद के इमाम साहब ने भेजा है, पीर साहब ने भेजा है, उस्ताद साहब ने भेजा है। एक दर्जे में पढ़ने वाले थे तो उसने मेरे हम यानी क्लास फेलो ने भेजा है। ये पता चल जाता है अल्लाह की रहमत से। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुज़म्मिल अंसारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद यामीन जो कि फैज़ान मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में मुअतकिफ़ थे माह रमज़ान के लिए, रज़ा इलाही से उनका फैज़ान मदीना में हालत इतिकाफ़ में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज़ है कि उनके लिए और मेरे लिए हिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वइय्याकुम। मुझे ये फेसबुक के ज़रिए ख़बर मिल गई थी, आज मेरी नीयत भी थी कि मैं इसाले सवाब करूँ। बुज़ुर्ग जो इनके वालिद, ये तो औलाद का तो मुझे पता नहीं था इनके, और भाइयों का होता तो पता तो मैं उन भाइयों के भी नाम लेकर ताज़ियत कर देता। मुज़म्मिल अख्तारी तो बेचारे वो फजर के लिए तो उठे, मुअतकिफ़ थे, फजर की नमाज भी पढ़ ली, अब वो सोए तो सोए रह गए, उनको जाग नहीं आई, इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुज़म्मिल भाई, मैं आपसे भी, आपके दीगर भाइयों से भी, बहनों से भी, तमाम सोगवारों से ताज़ियत करता हूँ। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वासिता मरहूम को गरीक़ रहमत फरमा। या अल्लाह मरहूम का एतिकाफ़ कबूल फरमा, इनके रोज़े कबूल फरमा, नमाज़ें कबूल फरमा, इबादतें कबूल फरमा, इनके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा कर इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन मरहूम के जुमला लवाहिकीन व पसमानदगान को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील मरहमत फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो जी ये वालिद एरो लगा हुआ है रेड, इनका इंतकाल हुआ है, कल फजर में हुआ है ना,
जी कल फजर में। फजर के बाद जब ये आराम के लिए लेटे तो बेचारे बस सोए रह गए। सोने वाले रब को सजदा करके सोने वाले रब से तौबा करके क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर हो ना हो सुबह तेरी, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं, तू कहीं सुबह को न हो ज़ेरे ज़मीन। यानी देखो बेचारे खुशी खुशी एहतिकाफ में आए और अब तो तदफीन भी हो चुकी होगी, कब्र की पहली रात भी आ चुकी होगी, तो हमारे साथ क्या बनेगा हमको कुछ पता नहीं। तो ये अमवात जो हैं खुसूसन अचानक जो मौत होती है ये इसमें बड़ी इबरत होती है। बाज़ार सेहत भी अच्छी होती है, कुछ भी नहीं होता और इंसान हार्ट फेल हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ नहीं तो ज़लज़ले आ जाते हैं, तूफ़ानी बारिशें आती हैं, सैलाब आते हैं, किस तरह अमवात, बुखार आता है, एक दो दिन शदीद बुखार में मुब्तला रहकर भी बंदा चला जाता है, पेट में दर्द होता है चला जाता है, ऑपरेशन करवाते हैं बाज़ मर्ज़ों का, ऑपरेशन फेल हो जाता है, बंदा दुनिया से चला जाता है। तो मौत तो बहरहाल यकीनी है, तो आनी है, इस पर तो सबका ईमान है हमारा। और देहरिया जो खुदा का इनकार करता है उसको देहरिया बोलते हैं, तो वो भी मौत का इनकार उससे बन नहीं पड़ता, वो भी देखता है कि हम बंदा मरता तो है, इनकार की उसके पास कोई वो अक्ली दलाइल उसके पास होते हैं ना, देहरिया वही होता है जो अक्ली दलाल, उसकी अक्ल में असल उसकी अक्ल नहीं होती, उसके अंदर अंगारे भरे होते हैं, तो समझ नहीं, खुदा का वजूद उसकी समझ में नहीं आता, मगर मौत उसकी भी समझ में आती है, देखता रहता है वो कि लोग मरते हैं, इसके अपने घर में भी मौत होती है, खुद भी मर जाते हैं। तो जो ऐसा हो अल्लाह करे उसको तौबा की सआदत मिल जाए, ईमान ले आए, कि वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, खुदा को जो नहीं मानता। तो बहरहाल ये कि हर हाल में मौत तो आनी 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 है, किसी को 4 दिन पहले, किसी को 4 दिन बाद, है ना। और जवानी में अधेड़ उम्र की उम्मीद होती है, अधेड़ उम्र में फिर बुढ़ापे की उम्मीद होती है, बुढ़ापे के बाद नो ऑप्शन, अब तो कोई ऑप्शन नहीं, अब तो सिवाय मौत बिल्कुल तैयारी है। इसके बावजूद अगर हम ना सुधरें तो क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे, अपना खौफ अता करे, मदीने में शहादत मिल जाए, काश जन्नतुल बकी मदफन हो, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू ताला अला मुहम्मद। हमारे यूके से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामियातुल मदीना के फ़ारिग़ तहसील मदनी हैं, तो हमारे यूके के जो जामियातुल मदीना के मदनी हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर पैगाम दिया है 1241 मदनी मुज़ाकरा मुबारक हो। खैर हर शख्स अपने मफाद के लिए काम कर रहा है, एक दूसरे की परवाह नहीं की जा रही। मैं क्यों किसी की मदद करूं जब मेरी कोई मदद नहीं करता। मुआशरे में एक अजीब सी फिजा कायम है, हम एक दूसरे से ताउन करने के लिए तैयार नहीं, जबकि आपस में ताउन से बहुत से मसाइल का हल मुमकिन है। बाहमी ताउन से तरक्की की फिजा हमवार हो सकती है। अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आपस में ताउन किस तरह बढ़ाया जाए, हम किस तरह एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं और इसके मुआशरे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और ये भी बताएं कि नेकियां कर दरिया में डाल कहाँ तक दुरुस्त है। माशाअल्लाह बहुत उम्दा सवाल है।
वाकई यानी कि मुआशरे की तामीर इसी तरह हो सकती है। और यह कि अगर किसी ने ताउन नहीं किया तो हम ताउन क्यों करें, ये सोच जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ताउन करना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। अब अगर इसलिए ताउन करता है कि उसने मेरे साथ ताउन किया था तो ये तो अदला बदला हो गया। अल्लाह की रज़ा के लिए तो इसमें थोड़ा दुश्वारी आ गई ना। इसलिए जो हमारे साथ अच्छा ना करे फिर भी हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। वो गालिबन शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो शेर है, बदीरा बदी सहल बाशुद जजा, अगर मर्दी फ़अहसिन इला मन असा, अगर मर्दी फ़अहसिन इला मन असा, यानी बुराई का बदला बुराई से देना तो आसान है। अगर तू मर्द है तो जो तेरे साथ बुराई करे तू उसके साथ भलाई कर। ये उसूल अगर हम लोग काश समझ जाए ना तो हमारा मुआशरा सही हो जाए। खानदान में दावत में भी होता है कि हमको दावत नहीं दी थी, हम क्यों दावत दें। इन्होंने हमारे यहाँ खाने के 2 आदमी कहे थे, हम पूरे खानदान को कैसे दावत दें। हम भी 2 ही कहेंगे, 3 नहीं, तीसरे को नहीं घुसने देंगे। पड़ोसी ने हमारे साथ यूं किया था, हम भी यूं कर देंगे। हमको जरूरत पड़ी थी तो पड़ोसी ने हमको पानी नहीं दिया था, हम क्यों पानी दें इसको, वगैरह वगैरह। ये नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम बाहमी ताउन जारी रखें तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा दुरुस्त होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए हो और जायज़ कामों में ताउन हो। गुनाह के कामों में ताउन की कोई मतलब ज़रूरत नहीं, बल्कि गुनाह के कामों में तो उल्टा मतलब गुनाह होगा। तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो, बुराई और गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। ये तो कुरान करीम का हुक्म है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम शहनशाह मदीना करार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का फरमाने आली शान है। मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और न ही उसे रुस्वा करता है। और जो कोई अपने भाई की हाजत पूरी करता है, हाजत मीनिंग जरूरत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हाजत यानी जरूरत पूरी फरमाता है। और जो किसी मुसलमान की एक परेशानी दूर करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई यानी ज़रूरत पूरी करने के लिए चलता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 75,000 मलाइका यानी 75,000 फरिश्तों के ज़रिए साया फरमाता है। वो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और वो फारिग होने तक रहमत में गोता जन यानी डूबा रहता है। और जब वो इस काम से फारिग हो जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब लिखता है। और सवाल का दूसरा हिस्सा था नेकी कर दरिया में डाल। ये जो कहते हैं इसके माना क्या है? इसके माना मेरी समझ में ये आते हैं कि नेकी कर और भूल जा, एहसान मत जता। याद रहेगी तो एहसान भी जताएगा। नेकी से मुराद किसी पर एहसान किया कि ये नेकी है तो इसको भूल जा, दरिया में डाल, इसको बिल्कुल अपने से भुला दे, बिल्कुल जैसे दरिया में डूब गई। और अब किसी को एहसान मत जता, जिस पर भलाई की, जिस पर एहसान किया, या वैसे भी अपनी नेकियां जो भी नेकियां हों उनको याद न रखा जाए, बल्कि इनको भुला दिया जाए और गुनाहों को याद रखा जाए। यहाँ तो नेकियों की बराबर की गिनती याद होती है। इतने दुरूद शरीफ पढ़े मैंने, इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, इतने इतने दिन से रोजे रख रहा हूँ। वो नफल रोज़ों में
इतनी खैरात की, सब याद होता है। दिन में कितने गुनाह किए, कितनी ग़ीबतें की, कितनी बार झूठ बोला, ये तो शायद ही किसी को याद रहता हो। कितनी बार किसी को झाड़ा, किसी को घूरा, कितनी बार माँ की नाफरमानी की, कितनी बार माँ को, बाप को सख्ती से जवाब दे दिया, ये कुछ भी याद नहीं रहता। याद रहती है तो कोई भूली बिसरी नेकी हो ना तो याद रह जाती है, ये मैंने किया था। नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया तो भी छुपाने न दिया, अमले नेक किया तो भी छुपाने न दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। कोई नात ख़्वां है कि नहीं आज? यार कोई दो चार शेर सुना देते। ऐसा मौका आया था, वो मुल्तान शरीफ की वो जो वफात होगी मोतकीफ की, तो मुल्तानी भी गौर से सुन रहे होंगे। उस वक्त कुछ अशार होते हैं ना मौत के, तो बड़ी इबरत का वक्त था, लेकिन एक भी नात ख़्वान शायद उस वक्त अगर था भी तो मुतवज्जे नहीं होगा। कलाम पढ़ता तो इसका वाकई यानी कि नफ़ा बहुत होता। तैयारी का वक्त है ना, ऐसे मौके पर बंदा नरम पड़ता है थोड़ा कि यार ये इस तरह अचानक चले गए। भले चंगे थे, फजर भी पढ़ी और सोए तो मस्जिद में सोए रह गए इत्तिकाफ की हालत में। बेवफा दुनिया पे मत कर तू अचानक मौत का होगा शिकार। बेवफा दुनिया पे मत कर तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा क़यामत तक रहे। जब फिरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाएगा। मौत आई पैनवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवां भी चल दिए। दुनिया में रह जाएगा ये तब दबा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा।
होना तेरा कुछ न काम आएगा, सरमाया तेरा कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में गए कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरे कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुनवा हशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा, नर्म बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे, घुपे अंधेरी कब्र में जब जाएगा, बेइंतिहा घबराएगा, काम मालो जल नहीं कुछ आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़ाएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, खूबसूरत कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रखना नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, उबल कर आँख भी बह जाएगी, खाल उधड़ कर कब्र में रह जाएगी, सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए, कोरने का बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दो ज़ख का गढ़ा, और खिल खिला कर हंसे रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मार कर ले तौबा रब की रहमत है पड़ी,
कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। कब्र का मामला ऐसा है कि हमारे बख्शे बख्शा आका मीठे मीठे मक्की मदरी मुस्तफ़ा शाफ़े योम जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कब्र के ताल्लुक़ से खौफ खुदा सुनिए। हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में शरीक थे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठे और इतना रोए कि मिट्टी भीग गई। फिर फरमाया इसके लिए तैयारी करो, कब्र रोजाना ये करती है पुकार। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझे में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी की कब्र पर तशरीफ लाते तो इस कदर आंसू बहाते कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई कि जन्नत और दोज़ख का तज़किरा करते वक्त आप नहीं रोते मगर कब्र पर बहुत रोते हैं, इसकी क्या वजह है? तो फरमाया कि मैंने नबी अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे नजात पाई तो बाद का मामला इससे आसान है, और अगर इसने नजात ना पाई तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। हाँ हाँ मगर आमान लेता आएगा, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रखना सुख बदन फट जाएगा, तेरा एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, उबल कर आँख भी बह जाएगी, खाल उतर कर कब्र में रह जाएगी, सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल कर छा गए, गोरने का बाग होगी खुल्द का। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, जब जनाजा तैयार हो जाता है और लोग इसे अपने कंधों पर उठाते हैं, अगर वो अच्छा है तो कहता है मुझे जल्दी ले चलो,
اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو. انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے. اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے. گورنے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. گورنے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر. حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کیا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ تو قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں. چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. گورے نیکا باغ ہوگی گورنے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. حضرت علامہ جلال الدین سید الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں. میں وہ گر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا. کرنے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ
सजा होगी कड़ी। मनकूल है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है और उसे अजाब होता है तो पड़ोसी मुर्दे उसे पुकार कर कहते हैं, ए दुनिया से आने वाले, क्या तूने हमारी मौत से नसीहत हासिल ना की? क्या तूने ना देखा कि हमारे आमाल कैसे खत्म हुए? और तुझे तो अमल करने की मोहलत मिली थी, लेकिन तूने वक्त जाया कर दिया। कब्र का गोशा गोशा उसको पुकार कर कहता है, ए जमीन पर इतरा कर चलने वाले, तूने मरने वालों से इबरत क्यों हासिल ना की? क्या तूने नहीं देखा था कि तेरे मुर्दा रिश्तेदारों को लोग उठा उठा कर किस तरह कब्रों तक ले गए? कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। वक्त आखिर या खुदा तार को खैर से सरकार का दीदार हो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये बरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये बरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरा नाम राणा इम्तियाज़ अहमद, फैसलाबाद शहर से हूँ मैं। मेरा सवाल ये है कि मैं अपने भाई का कर्ज अपनी ज़कात से अदा कर सकता हूँ? बराए करम इसका जवाब अरशाद फरमा दें। बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 927 मसला नंबर 20, फ़कीर पर दैन है, उसके कहने से माले ज़कात से वो दैन अदा किया गया, ज़कात अदा हो गई। यानी फ़कीर ने कहा कि भले आप माले ज़कात से मेरा कर्जा उतार दो, तो उसके कहने पर ज़कात दे दी किसी कर्ज ख्वाह को, तो अब ये कि ये ज़कात अदा हो गई। और अगर उसके हुक्म से ना हो, यानी फ़कीर ने कहा नहीं था कि मेरी ज़कात से तुम देन भले अदा कर दो, तो ज़कात अदा ना हुई। अगर किसी ने अपनी तरफ से उसका देन अदा किया, कर्जा अदा किया, और अगर फ़कीर ने इजाज़त दी मगर अदा से पहले मर गया, फ़कीर ने कहा कि ज़कात से मेरा कर्जा आप उतार दें, मगर वो जिसको कहा उसने अभी अदा किया नहीं था कि उस फ़कीर का इंतकाल हो गया, तो ये तो अब ये ज़कात देगा तो ज़कात अदा नहीं होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम अरशाद अली है, मैं फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड। गाड़ियों पे अक्सर लिखा होता है नॉन स्टॉप, जबकि जो भी गाड़ी जाती है वो स्टॉप करती जाती है। मेरा हजरत साहब से ये सवाल है
کیا یہ جائز ہے نان سٹاپ لکھنا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صرف بڑے اسٹاپ پر رکتی ہے، جیسے کوئی شہر آ گیا یا آبادی آ گئی میلوں میل کے بعد، اور ایک ہوتا ہے کہ بار بار اسٹاپ تو کرتی ہے لیکن نان اسٹاپ دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے کہ لوگ اس پر سوار ہو جائیں اور پھر بیچارے تنگ آ جائیں. دونوں صورتیں ہیں، ہے نا. تو پہلی صورت جو ہے کہ وہ کسی شہر یعنی کہ بہت دیر کے بعد رکتی ہے کسی جگہ پر، تو اس میں تو حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ گراں بھی نہیں گزرتا، سمجھ بھی آتی ہے کہ بھائی آخر کسی شہر پر تو رکے گی، کسی آبادی پر تو رکے گی. اور یہ جو بار بار رکتی ہے اور یہ دھوکہ دینے کے لیے نان اسٹاپ لکھتے ہیں نا، یہ ناجائز ہے، تو گناہ گار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حسن اختاری ہے، میں شجاع مدینہ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم لوگ باہر نکلیں اور گرد و غبار ہمارے منہ کے اندر چلی جائے، حلق سے نیچے اتر جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جزاک اللہ خیر. نے ہوا چلی اور گرد و غبار اڑا اور چلا گیا تو یہ روزے میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. محمد عمران فیصلہ آباد رضا آباد سے بات کر رہا ہوں میں. میرا سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ انگوٹھے پر اگر کوئی چیز کھانے پینے کی چپکا لی، شہد چپکا لیا، چوستا رہا، تو ڈائریکٹ حلق سے نیچے اترے گا شہد، تو ٹوٹ جائے گا روزہ. اور ویسے ہی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ چوستے رہتے ہیں، تو اگر کوئی بڑا ہے اور کچھ بھی اس پہ غذا نہیں لگی ہوئی، کوئی چیز بھی ویسے چوس رہا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اختاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، مدنی مذاکرے میں بغدادی کمپیوٹر، اجمیری کمپیوٹر، پیارے باپا جان کیا یہ مدنی کمپیوٹر کیسے آپ بناتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. اس کے کاریگر ہمارے سید عابد شاہ صاحب ہیں. یہ کمپیوٹر ان کے کارخانے میں تیار ہوتا ہے، ان سے رجوع کیجیے، نظر بھی آ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہباز اختاری ہامسلو یو کے سے عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی 11 سال کی ہے اور 2 بیٹیاں 9 سال کی ہیں. ہم سب روزے رکھ رہے ہیں. یہاں یو کے پر روزہ کم و بیش 20 گھنٹے اور 25-26 منٹ کا ہے، تقریباً 20.5 گھنٹے. تو اس ضمن میں میری بیٹی کا سوال تھا کہ کچھ ایسے خوراک کے متعلق مشورے ارشاد فرما دیں کہ اتنا لمبا روزہ گزارنا آسان ہو جائے. 20 گھنٹے کے 20-20.5 گھنٹے تقریباً 30.5 20 20. تو اس میں وہ کہ ذرا ایسی غذائیں کھائی جائیں کہ جو زیادہ سے زیادہ طاقت دیں، انرجی. اب وہ ملیں گے بھی 3.5 یا 4 گھنٹے کھانے پینے کے لیے. اس میں افطار بھی کرنا ہے، سحری بھی کرنی ہے. اور ماشاءاللہ یہ کہ آپ کا گھرانہ روزہ رکھتا ہے، یہ الحمدللہ بہت قابل مبارکباد اور لائق تحسین اور لائق تقلید آپ کا کام ہے. اللہ کرے دوسرے بھی روزے رکھیں. یہ ہوتا ہے امتحان، اور امتحان سے مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. افضل الاعمال احمدھا، جس عمل میں زحمت زیادہ ہو وہ افضل ترین ہوتا ہے، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، فضیلت اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو واقعی 20 گھنٹے کا روزہ تو یہ ہے تو آزمائش اس میں. اب یہ کہ اس میں غذا کا تو مشورہ کوئی طبیب شاید دے سکتا ہے کہ ایسی غذا
जो 20 घंटे तक आपको कुव्वत दे, है ना। भूख तो लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन ये कि ऐसे ही नहीं कि मतलब आदमी बिल्कुल ही डाउन हो जाए, चले। तो अब ये मदनी क्लिनिक से ये मदनी फूल मिले हैं, ये इसी माहनामा फैज़ान मदीना माह रमज़ान का जो निकला उसमें है। सहरी में खूब डटकर खाने से तबीयत भारी हो जाती है और तेजाबियत यानी एसिडिटी शुरू हो जाती है। लिहाजा सहरी में ऐसी ग़िज़ा खाएं जो देर से हज़म होती हैं। दूध के साथ खजूर, मुख्तलिफ फलों, दूध और दही के साथ सहरी करना भी मुफीद है। सहरी में दूध के साथ 4-5 खजूरें खाने से अच्छी खासी तवानाई यानी ताकत, एनर्जी हासिल होती है। इसका बेहतर तरीका यह कि जैसे खजूर भी चबाई और साथ में दूध भी चबाया और दोनों को मिक्स करते रहे, और ये आपके हाजिम लुआब भी जमा होगा, वो शामिल होगा। और एक तरीका ये भी है, बल्कि पानी का वो तरीका कि प्यास दिन में कम लगेगी, नहीं लगेगी रोज़े में, जो तंग करती है ऐसी प्यास के आदमी बेजार हो जाता है। तो अगर खजूर 3 मरतबा करना है, 1 खजूर और थोड़ा सा पानी, ये चबाते रहें मुंह में लेकर, फिर जब चब जाए अच्छी तरह ये महलूल हो जाए, मिक्सचर इसको निगल लें, इस तरह 3 खजूरें खाएं तो इंशाअल्लाह प्यास से बचत होगी। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने लिखा है कि सहरी में दूध के साथ 4-5 खजूरें खाने से अच्छी खासी एनर्जी मिलती है, तवानाई ताकत हासिल होती है। सहरी में अनछने आटे की रोटी खाएं तो खूब है, बेहतर है। ऐसा आटा जिसको छाना ना गया हो। अब बाजार से जो आटा मिलता है ना आजकल, वो छानने की जरूरत नहीं पड़ती, वो छना छनाया होता है, या छानते हैं या पता नहीं बारीक पीसते होंगे, छानने की भी क्या सहमत करते होंगे, अल्लाह बेहतर जाने। तो सहरी में अगर यानी घर की जो चक्की होती है ना, यूँ पहले ये होता था, अब तो ये दौर नहीं है, हाथ की चक्की में पीसते थे। अब भी हो सकता है देहातों में ये हिसाब किताब होता हो, भूसी वाला मिलता है अब भी, फाइबर वाला। हाँ, इसके डबल रोटियां भी आती हैं, सही लाल। हाँ हाँ, तो ये फाइबर वाला आटा, भूसी वाला आटा जो है ना, उसकी रोटी जो है ये वैसे मुफीद होती है, देर से हजम होती है, और इसमें भूख का भी ज़्यादा एहसास नहीं होगा, और आंतों को, पेट को पूंछ कर कचरा निकाल कर जाएगी, ये अच्छी है। शुगर के मरीजों के लिए भी गालिबन इसका मशवरा देते हैं कि ये फाइबर और ये लाल आटा और ये थोड़ा ब्राउन ब्रेड आता है, इसका मशवरा देते हैं डॉक्टर। तो ये अनछने आटे का नहीं देते, ब्राउन ब्रेड, शायद ब्राउन ब्रेड वही होता है, अनछना होता है, उसमें फाइबर होते हैं और थोड़ा सा रंग डालते होंगे, रंग के बगैर ब्राउन बनेगा कैसे, वो ये नफ्सियाती तौर पर शायद जायका मज़े का नहीं होता, मगर चल जाए, ऐसा बदमज़ा नहीं होता। ब्राउन ब्रेड आदमी, आम आदमी भी खा सकता है, मैंने इस्तेमाल किया है, ऐसा सही है। इसकी रोटी भी आती है बगैर शुगर, शुगर नहीं है मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल किया है, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ है, हर आदमी खा सकता है, मुफीद है, नुकसानदेह नहीं है। कि रोटी भी तैयार मिलती है, बाहर मुल्कों में इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, यहाँ का पता नहीं है मुझे। यहाँ की जो बड़ी मार्केटें होती है ना, आजकल ये सिलसिला कुछ चला, सुपर मार्केट बाहर मुल्कों के, कभी देखी नहीं है, सुना है, सुपर मार्केटें बाबुल मदीना में हैं, उनमें बाहर मुल्कों में जिस तरह की चीज़ें मिलती है ना, इससे मिलती जुलती चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं। ये क्वालिटी भी कहते हैं अच्छी होती है, खुदा बेहतर जाने।
आप पैसे तो लेंगे सर, क्वालिटी अगर ये क्वालिटी अच्छी देते होंगे, इनको अपने कारोबार को चमकाने के लिए मेयार बनाएंगे। अगर ये रफ क्वालिटी देंगे तो ग्राहक उधर जाएगा ही नहीं ना, बदनाम हो जाएंगे। तो ये सुना ये क्वालिटी क्या ख्याल है? ये तो तजर्बाकार है। हाँ क्वालिटी हर जगह जो ना महंगाई भी नहीं है, नहीं बाज़ जगह जो ना आम दुकान के मुकाबले में चीज़ें सस्ती होती हैं। हाँ ये अच्छा सिलसिला है। लोगों को अगर ये राहत पहुंचाएंगे, अच्छी नीयत के साथ अच्छी चीज़ देंगे, कम नफ़ा रखेंगे और नीयत ये करेंगे कि हम मुसलमानों को आसानी दे रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं, सवाब भी मिलेगा, काम भी, कारोबार भी चमकेगा, दोनों जहानों की बरकतें मिलेंगी। ऐसा कारोबार चाहे सुपर मार्केट वाला करे या कोई छोटी सी दुकान वाला करे, सबको मुसलमानों की भलाई की तरफ नज़र रखनी चाहिए। तो हर चीज़ ना सस्ती नहीं होती है कि बाज़ में जो ना वो चूँकि वो रिकवरी भी करनी होती है तो वो बाज़ जो वो फिर कुछ ज़्यादा ही महंगी होती हैं। अलबत्ता सुना ये कि ये पूरी लाट के लाट उठाते हैं तो यूँ इनको सस्ती पड़ती है। शुगर के मरीज या दीगर कमजोरी के शिकार शुगर के मरीज या दीगर कमजोरी के शिकार सहरी में जौ शरीफ का दलिया इस्तेमाल फरमाएं, चाहे तो उसमें मुर्गी के गोश्त के टुकड़े शामिल फरमा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़ा पूरा करने के लिए इनको भी तवानाई यानी एनर्जी और ताकत हासिल होगी। जौ शरीफ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है जो देर से हजम होता है, तो ये इनके लिए मुफीद होता है। अच्छा, इफ्तार के बारे में भी मदनी फूल बड़े प्यारे हैं। इफ्तार में फौरन बर्फ का ठंडा पानी पीने से गैस, तबखीर मेदा और जिगर के वरम यानी कलेजी की सूजन, लीवर की सूजन का सख्त खतरा है। शुगर के मरीज के लिए भी एक खजूर से इफ्तार करने में कोई मुजायका नहीं, नुकसान नहीं। इफ्तार के लिए केमिकल्स से भरपूर रंग बरंग के मशरूबात और ठंडी बोतलों, कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय तुख्म बालंगा, लीमू और शहद या चीनी की जगह शक्कर भी इस्तेमाल की जा सकती है का शरबत बनाकर इस्तेमाल फरमाएं। बहुत और भी अब आगे ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ते जाऊं मैं, फायदा तो बहुत है, लेकिन आप ये खरीद लो ना, माना फैज़ान मदीना 35 रुपये हदिया है और इसमें और भी रंगारंग मज़ामीन है, प्यारे प्यारे मज़ामीन है। तो फैज़ान मदीना, माहनामा फैज़ान मदीना हर महीने ये निकलता है, इसमें वो कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। तो इसको खरीदने का जहन बनाए और अब 1 साल के लिए जारी करवा लें, क्योंकि बार बार खरीदने में सुस्ती होती है। तो 1 साल का इकट्ठा हो जाएगा, तो ये आप अगर 800 रुपये जमा करवा देंगे ना, एड्रेस वगैरह लिखवा कर, तो ये हर महीने आपको घर बैठे पहुंच जाएगा। और अगर आपको और खूबसूरत चाहिए, रंग बिरंगी, तो अब 1100 रुपये जमा करवा दें, वो रंगीन आपको पहुंच जाएगा, चिकना कागज होगा, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और सादा 800 रुपये में, और अगर एक शुमारा है, एक माहनामा, ये 35 रुपये का दिया होता है सादे का, और रंगीन का 60 रुपया। और अगर आप मकतबतुल मदीना से खुद जाकर खरीदना चाहें तो सिर्फ 470 रुपये जमा करवा दें, 470 रुपीज़ ये जमा करवा दें, आपको कूपन मिल जाएगा। हर महीने कूपन दिखाकर आप अपना रिसाला मुफ्त ले लें। इन मानों पर मुफ्त के एक बार आप जमा करवा चुके हैं पूरे 12 माह के, तो और आप पक्के हो जाएंगे, वरना सुस्ती होती रही, यार लेंगे देखेंगे, आपके पैसे जमा हो गए तो आपको यार चलो पैसे दे ही दिए, ले लेते हैं। तो ये आपके घर में वो एक दीनी लिटरेचर पहुंचेगा, आप भी पढ़ें,
घर के दीगर अफराद भी पढ़ें, अम्मी अब्बू बाल बच्चे हैं तो वो भी पढ़ेंगे, इन्हें इंशाअल्लाह सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। पड़ोसियों को भी पढ़ा देना, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देखो ये जो हमने जारी किया मानामा या दीगर किताबें, हमारा ज़ाती मफाद नहीं है, हम आपकी खुशामद क्यों कर रहे हैं, आपकी मिन्नतें करेंगे, लो लो लो, दार दीन की तबलीग के लिए, नेकी की दावत के लिए, हमारी और आपकी आखिरत की भलाई के लिए, वरना नहीं लेंगे तो मेरी ज़ात का क्या जाएगा, मेरी जेब से क्या जाएगा, है ना। तो ये आप मेहरबानी करके, मेरी बात आपकी समझ में तो आती ही होगी, मेरा हुस्न ज़न है, तो इसको खरीदें आप। हाजी अमीन अभी अमीर सुन्नत जो माहनामा फैज़ान मदीना के लिए जो तरकीब दिला रहे हैं, तो अभी सोशल मीडिया पर भी चूँकि आपका चल रहा होता है, तो अभी इटली से आया है कि इटली में हमें क्या करना है, हमें कैसे मिलेगा। असल में इसमें जिन शहरों में हमारे मकतबतुल मदीना के ज़िम्मेदारान हैं, तो हमने कुछ ममालिक में ये तरतीब बनाई है कि वहीं पर हमने मजलिस के ज़रिए नाम जमा किए हैं और इस्लाम भाई जो है वो यहाँ से बायर मंगवा लेते हैं और फिर वहाँ पोस्ट के ज़रिए जो है वो उसको भी तरकीब बनाने की मतलब सहूलत है। तो अगर ये इटली के जो ज़िम्मेदारान इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो चाहें तो मकतबतुल मदीना की मेल एड्रेस पर रब्ता कर लें या हमसे रब्ता कर लें, तो इंशाअल्लाह ये कि बाकायदा तरीक़ेकार बनाकर और इस तरह से सिलसिला बन सकता है कि इनके ममालिक में भी बज़रिया पोस्ट ये माहनामा फैज़ान मदीना जो है ये पहुँचाया जा सकता है। अभी अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे थे तो ये 35 रुपया हदिया है। पापा मैं देख रहा था, इसके सफ़ात तकरीबन 65 है, यानी हिसाब लगाते तो 8 आने यानी 50 पैसे लगते हैं एक सफ़े के, 1 रुपये के 2, 1 रुपये के 2, यानी इतना तकरीबन 40 सिलसिले इसमें, तकरीबन 40 मौज़ूआत। टाइटल पेज तो नंबर में नहीं होता होगा, दोनों तरफ का टाइटल पेज जी कलर बैक और फ्रंट जी जी। तो यूं 35 रुपया हदिया और तकरीबन 65 सफ़ात हैं इसके। चाय 20-30 रुपए की, शायद 25 रुपए की हो गई होगी यार। एक चाय पी, एक चाय कम कर लो ना, माइनस कर लो, रिसारा ले लो, बल्कि 2 चाय कम करके किसी और को भी एक रिसारा दिला दो हर महीने। हाँ इसको आम करें यार, ये आपका अपना है, आप ये आपकी दुकान है, आपकी सुपरमार्केट है, तो इसको जितना आप बिक्री करेंगे आपको दुनिया और आखिरत में नफा मिलेगा इंशाअल्लाह। इसमें निगरान शूरा ने जो तवज्जो दिलाई, तो पाकिस्तान में हमारे वतन में भी कुछ हमारे पास सर्विसेज की कमी थी, तो हमने ये भी निज़ाम बनाया कि हमारी जो मजलिस तकसीम रसाइल है इसके ज़रिए भी घर घर पहुँचाने का सिलसिला बनाया है। तो 4 शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह इसका कामयाब तजर्बा हो गया। तो पाकिस्तान में भी जो ज़िम्मेदारान हैं, अगर इनके अपने गांव शहर में रिसाले पहुंचने के हवाले से कुछ शिकायतें हैं तो वो बाकायदा रब्ता करें। इंशाअल्लाह हमारे अपने इस्लामी भाइयों के ज़रिए भी हम घर घर पहुंचाने का सिलसिला बनाएंगे। ये हिंद से भी आया है कि हिंद वालों के लिए भी यही तरीका है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, दुनिया भर के जो भी इस्लामी भाई हैं बैरून मुल्क के, उनके लिए ये तरीका है जो अभी हमारे निगरान साहब ने इरशाद फरमाया। ये शब्बीर अत्तारी हैं, शब्बीर अत्तारी खान, सोशल मीडिया के ज़रिए भी इन्होंने सवाल किया है कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा? अल्लाह ताला मकान से पाक है, यानी किसी जगह पर वो रहता नहीं है, यानी ये भी नहीं कह सकते कि ऊपर रहता है। आमतौर पर लोग ऊपर रहता है यही कहते हैं, बाद वक्त बच्चों को भी सिखाते हैं, मैंने देखा है कि बच्चे को बोलेंगे अल्लाह किधर है, यानी वो माज़अल्लाह फिर लफ्ज़ मियाँ भी साथ बोलते हैं, कहाँ है, तो बच्चा वो ऊपर का इशारा करेगा। डेफ जो होते हैं, गूंगे बहरे, इनकी जो तरबियत करते हैं जो इदारे, मालूम हुआ है कि उनमें भी अल्लाह का इशारा ऊपर का ये करते हैं। तो हमारे यहाँ ये जब ये काम शुरू तो पता चला तो हमने उसका इशारा तब्दील किया। तो अब अल्लाह का इशारा हमारे यहाँ क्या है वो याद है। हाँ ये होंगे इस्लामी भाई जिम्मेदार, डेफ के लिए क्या इशारा है, गूंगे बहरों के लिए? पापा ये यूं करते हैं, जब डेफ अल्लाह अल्लाह का जैसा जिक्र करते हैं ना, तो ये यूं करते हैं अल्लाह अल्लाह, तो मतलब अल्लाह एक है, यानी इससे इनसे जो बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि हमारी इससे मुराद अल्लाह एक है। अच्छा, ऊपर का जो इशारा ये मुराद नहीं है ये पहले हमारे
تھا ذہن میں. اچھا. اس کے بعد پھر ہم نے ان کو ایک اشارہ دیا تھا. جی جی. تو اس پر ان کو یہ اشکال ہوا, وہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ جیسے 3 سے مراد. تو پھر ہم نے ایک ہی مدنی مذاکرے میں جب انہوں نے ہمارے سامنے بات کی تھی تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, پھر جو آپ کا جو اشارہ ہے اس سے مراد چونکہ ایک لے رہے ہیں واحد, تو یہ اشارہ درست ہے. اچھا, اور اداروں میں جو سکھا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے, مطلب یہی اشارہ ان کا اللہ کا چلتا ہے, اللہ اللہ اللہ, یہ اللہ ایک, ان سے مراد اللہ ایک ہے, واحد ہے. ماشاء اللہ. اسلام بھائی وہاں پہنچے ہیں. جی باپو کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یہاں پر ہم پہنچے ہیں اسلامی بھائیوں کے پاس اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی دکھاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, یہ یہاں پر موجود ہیں عاشقان رسول, خصوصی اسلامی بھائی ہمارے. اذکر اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا. تو وہ اوپر اللہ کو اوپر والا کہتے ہیں. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے, دائیں بائیں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ مالک ہے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 109. سوال, کسی سے یوں کہنا کیسا ہے کہ اوپر اللہ کا سہارا, زمین پر آپ کا سہارا؟ جواب, کفر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان و سمت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے اور سمت یعنی ڈائریکشن سے بھی پاک ہے. یوں بھی نہیں کہہ سکتا, یوں بھی نہیں کہہ سکتا. اچھا, دوسرا سوال, اللہ کو اوپر والا کہنا کیسا؟ سوال, اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا کیسا ہے؟ جواب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت یعنی ڈائریکشن کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات جہت یعنی سمت سے پاک ہے. جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتاز ثانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے. جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت ڈائریکشن سے بھی پاک ہے. اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے. اور حضرت علامہ ابن نجائم مصری علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. اچھا, اب فتح فیض الرسول میں ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے کہ اوپر والا نے اللہ کی شان بہت بڑی ہے, تو قائل یعنی کہنے والے پر حکم کفر نہ لگائیں گے مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے. سوشل میڈیا پر جو عاشقان رسول براہ راست سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ابھی دیکھ بھی رہے ہیں, ہمیشہ ایک مدنی پھول اپنے ذہن نشین رکھیں کہ الحمدللہ میل سنت کے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے جو بیانات اور سوالات کے جوابات ہو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اس پر توجہ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. آپ چونکہ کومنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بیان چل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کومنٹس پڑھ رہے ہیں اور ٹائپ بھی کر رہے ہو, کومنٹس کے جواب بھی دے رہے ہیں آپ. اب اس میں کوئی صحیح کومنٹس کر رہا ہے, کوئی غلط کر رہا ہے, کوئی پلس کر رہا ہے, کوئی مائنس کر رہا ہے, اور آپ اپنی وہ کر رہے ہیں, تو آپ تو یہ جو مدنی پھول مل رہے ہیں جو بیان ہو رہا ہے اس کی تو بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا, آپ اس کو جواب دینے میں, اس کو سوال کہنے میں. آپ سوال کریں سوشل میڈیا پر, سوال کر کر آپ اب سننے میں لگ جائیں کہ اگر آپ کی باری آئی اور سوال کرنے کا موقع ملا تو آپ کو سوال کر لیا جائے گا, لیکن آپ اپنے سوال کے جواب کے انتظار میں بھی رہیں
اور دیگر جو سوالات کے جوابات بیان ہو رہے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے علم میں اضافہ کریں. لہذا میں تمام سوشل میڈیا فیس بک کے جو بھی اس وقت بھی دیکھنے سننے والے ہیں میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ بالکل آپ بیان میں شریک رہیں, نہ کسی کے یوں کومنٹس پڑھیں, نہ کسی کے نیگیٹو کومنٹس پر آپ آنسر کریں, کچھ بھی نہ کریں تاکہ آپ علم دین کے جو فیضان ہے اس سے محروم نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور بحالت اعتکاف میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ قابل رشک ہے, اور اس کی تمنا کرنا کیسا؟ ایسا رشک کرنا اور تمنا کرنا یہ جائز ہے. جیسے مدینے میں موت کی تمنا بھی تو ہم کرتے ہیں نا, تو کوئی بھی نیکی کے کام میں موت آئے یہ تمنا کرنا جائز ہے. ناجائز وہ ہے دعا, جو دعا کرنا کہ مصیبت سے بیماری سے تنگ آ کر جو دعا کرتا ہے نا وہ ناجائز ہے, یعنی موت کی دعا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے سب سے افضل زبان کون سی ہے, اور جواب کون دیں گے؟ 60 سال سے جو ہے نا وہ بڑی عمر والے. یہ جواب میں تو ہمارے مدنی منع بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے. جی جی امین, 60 سال سے بڑی عمر والے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امانت علی اطاری میروی کربینہ, عمر 63 سال. ماشاءاللہ. سب سے پیاری زبان عربی ہے الحمدللہ. میں نے پوچھا ہے سب سے افضل زبان. سب سے افضل زبان عربی ہے. جواب درست ہے, پیاری بھی اور افضل بھی ہے. تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی زبان ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل جنت کی زبان عربی ہی زبان ہوگی. جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے اسے ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ہند سے سوال آیا ہے ہمارے پاپا فیس بک پر کہ, اور یہ انہوں نے دوبارہ بھیجا ہے کہ پلیز میرا سوال کر لیجئے کیونکہ اس سے مطلب کئیوں کے اعتقادات شاید ان کو ایسا لگتا ہے درست ہو جائیں گے. یہ معراج الدین ہے, معراج الدین قادری. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنات یا جو حاضریاں جو ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں اگرچہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے, مگر یہ کہتے ہیں جب کسی پر حاضری آتی ہے تو پھر اس کی آواز کیوں چینج ہو جاتی ہے اور وہ طرح طرح کی وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے, تو کیا یہ کوئی جن یا کوئی ایسی چیز کسی کے جسم میں حلول ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جن ہو یا کوئی چیز بھی حلول نہیں کر سکتا. وہ حلول تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ خطرناک ہے حلول ماننا. تو کسی کے اندر حلول ماننا یہ کفر ہے بالکل, یعنی کہ جائز نہیں ایسا. تو حلول نہیں ہوتا, وہ جنات اس پر کسی طرح کنٹرول کر لیتے ہوں گے اور اس کو اچھالتے ہوں گے. جب بندر کو بھی تو ڈگڈگی بچا کر مداری نچا ہی رہا ہوتا ہے نا, تو مداری کو اندر حلول تھوڑی کر جاتا ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی ان کے پاس جنات کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک ہوتی ہوگی جس سے یہ اس کو عورت یا مرد کو نچاتے ہوں گے, اس کی آوازیں تبدیل کر دیتے ہوں گے, ان کو اس طرح کی ہوتی ہوگی مطلب قوتیں حاصل. تو اس میں حلول نہ مانا جائے, اس میں کہ اندر گھس جاتے ہیں, یہ نہیں. تو یوں حاضری آتی ہے اور یہ جنات بول رہے ہوتے ہیں اور تماشے کر رہے ہوتے ہیں, لوگ مطلب سوال کرتے ہیں, اور جو شرابی پیتے کم ہے ادھم زیادہ مچاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں, اور جو لوگ دیکھتے ہیں تو جان جان کے بیکی بیکی باتیں کریں گے اور زیادہ جھومیں گے.
اور اگر وہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اگر نعوذ باللہ شراب پی بھی ہے تو چپ چاپ چلے جائیں گے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں لوگ دیکھنے والے ہوں نا تو یہ تماشا کرنے والے بہت زیادہ جوش میں آتے ہیں. یہ جنات کا ہوتا ہے, یہ بندے جمع کرتے ہیں اور تفریح لیتے ہیں, لوگوں کی حماقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو سوال کرنا اور یہ سب حماقت ہے. اور معاذ اللہ جن سے آئندہ کی بات دریافت کرنا یہ حرام. اور اگر ان کو علم غیب ہوتا یہ عقیدہ رکھا جن کو, تب تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ قرآن میں صحیح حکم ہے قرآن کی آیت میں کہ جن جو ہے غیب سے نرے بے خبر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو فیس بک سوشل میڈیا پر جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب دیکھیں جیسے کہ یہ آ رہا ہے نا, اب آپ کومنٹس پڑھتے ہوئے دیکھیں گے یا سنیں گے تو شاید آپ کی توجہ ہٹ جائے گی. آپ یوں کر لیں, یہ کومنٹس ہٹ گئے, مطلب یہ ہٹ گیا سب کچھ بھی نہیں, صرف اب آپ کو یہ مطلب کہ ویڈیو نظر آئے گی. اب یہ دیکھیں, اور آپ ایک اپنا سوال اگر چاہیں تو سوال کر دیا, اب آپ کو مثال کا تو کومنٹس دیکھنے ہیں, پھر کر لیا تو کومنٹس آ گئے, تو یہ بالکل اس کو ہٹا دیں, اور ہٹا کر آپ مطلب کہ اس کو یوں کر لیں تو یہ پورے اسکرین پر آپ کو یہ نظر آ جائے گا. تو جیسے بھی آپ موبائل پہ دیکھ ہی رہے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا, آپ جس کو دیکھنے وہی نظر آئے گا, اور اپنے سوال کا انتظار کرتے رہے. تو یہ چند چیزیں میں نے کہا خیر خواہی کے تحت میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میں راول پٹی سے بشر تاری بات کر رہا ہوں. چھوٹے سے سوال کا جواب پوچھنا تھا میں نے. ہم نے بچی کا عقیقہ دینا ہے تو اس کا گوشت اس کے ماں باپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ والدین کھا سکتے ہیں, دعوت بھی کی جا سکتی ہے. البتہ یہ ہے کہ جو جانور ذبح کیا جیسے بکری یا بکرا وغیرہ, تو اس کی ران جو ہے وہ جنائی کو دینا جو ہے وہ بہتر ہے. مڈ وائف کو دینا جو ہے وہ بہتر ہے. نہ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. نانا نانی دادا دادی امی ابو سب کھا سکتے ہیں. ہر مسلمان عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے. سوال ہے کہ وہ جو میری خالہ نے پوچھا, انہوں نے زیور جو پہنا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی, ایک زیور جو پہنا ہوا ہے اگر شرائط اگر پائی جائیں گی تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. زیور سے مراد یہ سونا چاندی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح ایک اور بھی سوال آیا ہے, یاسین نعیم ہے, کہتے ہیں اگر بیوی نے اپنے خرچ میں سے 5 لاکھ جمع کیے ہیں تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی, اور اس نے وہ پیسے کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں؟ پلیز جواب دے دیں. 5 لاکھ جمع کریے وہ خرچوں میں. ہاں جی, اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی بالکل. البتہ یہ کہ جب وہ انہوں نے ادھار دیے ہوئے, ابھی ان کے پاس رقم ہے نہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ کسی سے قرض لے سکتی ہیں اور یہ ہے کہ بعد میں ادا کر دیں گی, تو اب جو ہے وہ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دیں. ان کے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہو گئی ہے, البتہ یہ ہے کہ دینا ان کے اوپر فوری لازم نہیں ہے. یہ اس صورت میں لازم ہوگا جب کہ ان کو رقم مل جائے یا نصاب کا 5واں حصہ مل جائے. جیسے مثال کے طور پہ 38,000 روپے بھی نصاب بن رہا ہے, تو اس کا 5واں حصہ اگر ان کو مل جاتا ہے تو اتنے حصے کی زکوٰۃ دینا ان کے اوپر لازم ہو جائے گا. ہاں, 38 میں 38,000. اب یہ ہے کہ اب جو قرض ہے یعنی اب وہ دینا چاہتی ہے کہ چونکہ تاکہ ایک ساتھ ملے گی تو مشکل نہ پڑ جائے, اور ابھی رقم نہیں ہے دینے کے لیے, تو اب اس کو دینے کے لیے قرض لیتی ہے تو حرج نہیں. ہاں, قرض لے کے دینا بہتر ہے, جی, لازم نہیں. بندر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ ناپاک, کہ بندر جو ہے وہ درندہ ہے. مراقل فلاح جو مشہور کتاب ہے فقہ کی, اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ درندے والے اس کا حکم ہے, اور اس کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے, نجس ہے. درندے والا حکم ہے یا خود درندہ ہے؟ لکھا یہی, اس کو درندوں کی قسم کے اندر ہی لکھا ہے. اچھا.
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں 2 سوال ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں اور داڑھی کو کاٹ سکتے ہیں؟ جی روزے کی حالت میں جو ہے وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور دوسرے کہ جو ایک مشت جو زائد داڑھی ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. البتہ مراد اگر یہ ہے کہ معاذ اللہ شیو بنانا اور یا خشخشی رکھنا تو یہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں اور برا ہے. یہ البتہ یہ کہ اگر کوئی معاذ اللہ یہ فعل کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب. حسیب اتاری دینا بنے مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے سوال جو ہے کہ کیا صرف نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، نہ کلی کی اور نہ ہی ناک میں پانی چڑھایا وغیرہ، وضو ہو جائے گا؟ نہیں، نہانے سے مراد اگر یہ ہے کہ فرض تھا اور اب اگر کلی اور یہ ناک میں پانی نہیں چڑھایا تو اس سے جو ہے وہ فرض ہی نہیں اترا، جو غسل فرض تھا وہ نہیں اترا، تو اس سے جو ہے وہ ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا ضروری ہے اور کلی کرنا یہ بھی ضروری ہے. البتہ اگر فرض نہیں تھا اور ویسے ہی اگر نہا لیا جیسے ٹھنڈک کے لیے یا ویسے اگر نہایا تو اب یہ ہے کہ اس میں وضو بھی ہو گیا. کلی سے مراد یہ ہے کہ حلق کی جڑ تک پورے منہ کے ہر دانتوں کے سب کے کل پرزے میں مسوڑوں کی کروٹوں میں سب جگہ پانی بہہ جائے. اب بڑے بڑے گھونٹ کسی نے پی لیے تب بھی وہ کلی کا فرض ادا ہو جائے گا. اگر کسی نے ویسے غسل کیا اور اس میں کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا، غسل فرض نہیں تھا اور آدھا وضو پر تو پانی بہہ گیا، پورا اس طرح غسل کیا تو وضو ہو گیا، لیکن کلی اور ناک میں پانی چڑھانا چونکہ سنت موقدہ تھا یہ چھوٹے، وضو ہو گیا کہا جائے گا. یعنی کہ اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو گیا، وضو کے جو فرائض میں سے تھے وہ ادا ہو گئے. میرا نام محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 حصے ہیں، یہ ایک حصہ ہے. مثلا صلی اللہ علی محمد، اس کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 2 درود پاک کہلائیں گے. اور اگر ہم 313 بار اس کی تعداد پورا کرنا چاہیں تو اس کو ہم کو دونوں کو جمع کرنا پڑے گا یا اکٹھا ہی پڑھا جائے گا؟ رہنمائی فرمائیں. جی یہ جو ہے وہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علی محمد ایک درود پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم 2 درود پاک، دوسرا درود پاک، تو یہ 2 درود پاک کہلائیں گے. دوسرے میں درود کے ساتھ سلام بھی شامل ہے اور پہلے میں صرف درود ہے. میرا نام غلام مرتضیٰ اتاری ہے، میں اختار والا پورے والا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال خدا حضور کی بارگاہ میں ہے کہ آپ کو اکثر دکھتا ہے کہ آپ نے دستانے پہن رکھے ہیں، یہ گرمی کا موسم ہے، اس کی حکمت بتا دیں. شکریہ. جو وہ ہاتھوں میں جو ہے وہ پسینہ آتا ہے اور پاؤں کے تلووں میں بھی، تو اس لیے جو ہے وہ یہ پہننے پڑتے ہیں، دستانے بھی اور موزے بھی. صلو علی الحبیب. سوشل میڈیا کا ایک سوال ہے کہ ایک بوڑھی عورت، ان کے 2 لڑکے ہیں، چھوٹے ہیں، کمانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے، مکان کرائے پر لگا کر گزر بسر ہو رہا ہے. بوڑھی خاتون کے پاس 8 تولہ سونا ہے مگر کیش نہیں. اب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیچ کر وہ جو ہے وہ ادا کریں، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی پڑے گی کیونکہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہے نا، تو یہ تو 8 تولے ہے. جبکہ شرائط پائے جائیں، قرض وغیرہ میں ڈوبا ہوا نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد القادر قادری اتاری ہے، میں کراچی کورنگی سے میرا تعلق ہے. مدنی چینل ہے، اس سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے. میرے ایک بیٹے ہیں عبد المقدم، جب سے ان کی آنکھیں ویک ہوئی، بلائنڈ کی پوزیشن میں ہو گئے، گھر میں تلخی اور بہن بھائیوں سے بھی تھوڑا الجھنا، جواب دے دینا، کچھ اس طرح کی وہ کر دینا، جو آج کل ماحول چل رہا ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ، خصوصی اسلامی بھائی سے ان کی پھر ملاقات ہوئی کسی سے، انہوں نے پھر ان پہ انفرادی کوشش کی کہ ہمارے کچھ جو خصوصی اسلامی بھائی ہے وہ
काफ़िले में जाते रहते हैं, तो अगर आप भी अपने तरकीब बनाए। तो मेरे पास बहरहाल कॉल आया, तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी आप जिम्मेदारी लो। उनका जी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। फिर वो इनको हैदराबाद भी ले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तब्दीली आ गई है, माहौल में आ गए ये। और मुल्तान शरीफ में भी पिछले महीने 1.5 महीने पहले गए थे 12 दिन के काफ़िले में, और इन्होंने खुसूसी इस्लामी भाइयों के साथ, और फिर आने के बाद बड़ी इन्होंने तारीफ़ की कि वहाँ हमारा बड़ा उन्होंने ख्याल, हमारे खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, हमें बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने घर में मौजूद। माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें सीखने को मिले अब्दुल मुक़द्दिम अत्तारी। माशाल्लाह। दूसरी इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह नाबीना इस्लामी भाई, गूंगे बहरे इस्लामी और मादर इस्लामी भाई में नेकी दावत का काम करना होता है। मैं भी अब इस शोबे का हिस्सा हूँ। मैंने मैट्रिक किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक के बाद मेरे से कुछ आँखों में मामला हो गए, जिसके बाद मुझे नज़र काफ़ी कम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे के इस्लामी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह इंफरादी कोशिश की मुझ पर, और मुझे मुख्तलिफ कोर्सेज़ वगैरह में की दावत पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी दावत कबूल की और मुल्तान में 12 रोज़ा इस्लाह अमाल कोर्स किया। इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी इल्म दीन सीखने को मिला। मौलिकात जो कि तकब्बुर, ग़ीबत, बदगुमानी जैसे गुनाह से बचने का ज़हन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स की बरकत से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 50 मदनी इनामात ज़बानी याद भी कर लिए हैं। आप एक इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए मेरे लिए। अमीर सुन्नत के बारे में एक अर्ज़ थी कि हमारे नाबीना इस्लामी भाई के लिए भी कुछ मदनी इनामात का कार्ड अगर अता हो जाता, तो क्योंकि ये तो नॉर्मल इस्लामी भाई के लिए मदनी इनामत थे, अगर नाबीना इस्लामी भाई इन पर किस तरह अमल कर सकते हैं। किसी को वकील बनाकर अगर इन्हीं मदनी इनाम पर अगर टिक लगवाए तो उससे 2 गुनाह का एक तो इर्तिकाब होता है, एक तो रियाकारी में और एक गुनाह का इज़हार करने का भी इज़हार हो सकता है। तो आपसे अर्ज़ है कि मदनी इनाम पर अमल करने का तरीका बता दीजिए, हमारे नाबीना इस्लामी किस तरह से इन पर अमल करे, और मेरी आंखों के लिए भी दुआ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल मुक़द्दिम, आपका मदनी माहौल मुबारक हो। बेटा थोड़ा वो अल्हम्दुलिल्लाह और ये थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। थोड़ा इत्मीनान से बेटे बोलेंगे ना तो तलफ़्फ़ुज़ सही अदा होंगे, मखारिज सही अदा होंगे। आम लोग भी इसी तरह सुबहान अल्लाह को सुबहान अल्लाह तो ये नहीं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, माशाअल्लाह से नहीं, माशा अल्लाह। ये सीखना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, दुरुस्त अदा करना है। अब ये कि इनकी बात तो सही है कि अब मदनी इनामात ये किसी से भरवाते हैं तो अमल का जहाँ आएगा तो वहाँ इनको यूँ होगा, दिल में वो रिया पैदा होने का अंदेशा रहेगा। और अगर कोई गुनाह, नमाज छूटी है, जमात छूटी है बिला उज़्र, कोई ऐसी सूरत है, इसमें है गुनाहों के भी हैं जिसको लिखना तो नहीं होता, लेकिन ये कि वो पूछेंगे तुमसे ये हुआ नहीं हुआ, या गुनाहों का ये पूछे ही नहीं, ये हो सकता है। ऐसे कोई ये सिस्टम मजलिस ने हो सकता है बनाया हो। इसमें यही है बाबा कि वही मदनी इनाम जो सारे बताने पर वो गुनाह का इजहार हो, तो इसकी तरकीब नहीं है। इसके अलावा जो मदनी इनाम है इस पर इन्हें टिक लगा कर भी दे दी जाती है कि ये इन मदनी इनाम पर अमल करें। खुसूसी इस्लामी भाइयों के हमारे 27 मदनी इनामात, इनका रिसाला है पूरा। बाकी नाबीना जो हमारे इस्लामी भाइयों खुसूसी, इस हवाले से इंशाअल्लाह कोई तरकीब इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, जबकि अल्लाह ताला को तो सब इल्म है। अब वो तो इल्म तो है, इसमें तो कर, इसमें तो शक करना भी कुफ्र है कि पता नहीं अल्लाह को मालूम है, उसकी मशीयत है, उसकी मर्जी है। अब किरामन कातिबीन भी तो हैं, लिखने वाले फरिश्ते। बंदा इनकार करे तो सब काम उसका लिखा हुआ उसके सामने आएगा, उसके आज़ा गवाही देंगे, वो जगह गवाही देगी जहाँ इसने नेकी की या गुनाह किए, सब गवाहें। अल्लाह ताला को तो हमेशा हमेशा से मालूम है और हमेशा हमेशा के लिए मालूम है, हर जर्रे का, कुछ भी यानी उससे छुपा नहीं है।
लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सुभान अल्लाह, कि तुम में से किसका अमल अच्छा है, जांचे तुम्हें, तुम्हारा इम्तिहान ले। ये उसकी अपनी मशीयत है, उसकी मर्जी है, वो अपने जो चाहता है करता है, इस पर कोई रोक नहीं है, रुकावट नहीं है। वो जो भी करता है सही ही करता है, खता से भी पाक है, भूलने से भी पाक है। ये मसले शायद पूछी है इसने, साहिल ने, जवाब हो गया ना। मतलब हम मुसलमान हैं, हमारा काम ईमान लाना है, ऐसी मनण वाले सोचण वाले नहीं। हुज्जत भी पूरी हो जाती है आदमी पर, किसी तरह की हुज्जत बाकी नहीं रहती, दलील भी मुकम्मल हो जाती है। सवाल ये है कि अब या सैयदी, आप अपनी इस्तिलाहात में ज़्यादातर मदनी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मदनी उसको कहा जाता है जो मदीने शरीफ में रहने वाला हो? ये मतलब लुगत के भी एक कवायद होते हैं जो आम लोगों में ज़ाय और शाये हो जाएं, और उसको वो जो अहले लुगत होते हैं, लुगत के माहिरीन, लुगत के उलमा, ये उसको बाकी रखें, तो ये उसमें शामिल हो जाता। तो मदनी तबका ये एक लफ्ज़ उर्दू का है। फिर और भी शायद ऐसे लफ्ज़ मदनी, यानी ये हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए, उम्दगी के इजहार के लिए भी लफ्ज़ मदनी लुगत में मुस्तअमल है, इस्तेमाल किया गया है कहीं कहीं। तो हम लोग मतलब यानी कि मदनी से मुराद ये नहीं कि मदीने का है, बल्कि जैसे आप जामियातुल मदीना में जो फारिग तहसील हैं, हम इनको भी मदनी कहते हैं। तो ये तो बेचारे अक्सरियत ने मदीना देखा ही नहीं होगा, लेकिन ये मदनी कहलाते हैं। तो ये हमारी इस्तिलाह है। तो इस तरह की इस्तिलाह रखने में कोई शरअन हरज भी नहीं है। हमको मदीने से मोहब्बत है, हमारी चादर भी मदनी है, हमारा सूट भी मदनी है, हमारा इमामा भी मदनी है, हमारी फिक्र भी मदनी है, फिक्र मदीना, माहौल भी मदनी है, चैनल भी मदनी है। और बोलो, फ़िक़े हनफी का क्या मतलब है? मदनी तबका लुगत में अपने साथियों से मिलजुल कर रहने वाला। फ़िक़े हनफी असल में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान और हदीस की रोशनी में जो अपने असहाब के साथ मिलकर मसाइल और अहकामात मुरतब किए, उम्मत की रहनुमाई के लिए जो उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर किए कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर, उसको उमूमी तौर पे फ़िक़े हनफी ये आम ज़बान में कहा जाता है। हारिस अत्तारी कैंट मुल्तान से बात कर रहा हूँ। बाबा जान, मेरा सवाल ये है कि क्या माउथ वॉश इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? माउथ वॉश में क्योंकि जायका होता है, अगर मुंह की सफाई के लिए माउथ वॉश इस्तेमाल करें रोज़े की हालत में, तो रोज़े पे क्या असर पड़ेगा? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अगर इसके अज्जा, इसका टेस्ट हल्क से नीचे उतरेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। और इस्तेमाल से मना करेंगे इससे कि इसमें रिस्क है, वेरी रिस्की गेन, बहुत खतरा है कि ये उतर जाए, इसका टेस्ट हल्क के नीचे, तो रोज़े में इस्तेमाल ना किया जाए, रात को इस्तेमाल करें। सफ़र मदीना के लिए सफ़र मदीना वालों के नाम ले लें। इरफान वल्द जमील लोधरा, इरफान वल्द जमील लोधरा, इरफान वल्द जमील लोधरा। मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद इकबाल बाबुल मदीना, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद इकबाल बाबुल मदीना, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद इकबाल बाबुल मदीना। मुजाहिद अली वल्द आदत मलिक राधन, मुजाहिद अली वल्द आदत मलिक
राधन, मुजाहिद अली वल्द आदत मलिक राधन, असद वल्द मनशा बाबुल मदीना, असद वल्द मनशा बाबुल मदीना, असद वल्द मनशा बाबुल मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये फैज़ान तिलावत कोर्स में मेमोरी कार्ड के ज़रिए तिलावत सुनी जाती है, तो उस तिलावत के साथ अपनी तजवीद दुरुस्त करने के नीयत से साथ में पढ़ सकते हैं। ये एक दूसरा है कि मेमोरी कार्ड के ज़रिए तिलावत सुनते वक्त सजदा तिलावत की आयत सुनने से सजदा वाजिब होगा। मेमोरी कार्ड में जो तिलावत सुनी और उसमें जो है वो आयत सजदा अगर सुनी तो इससे जो है वो सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता अगर वही तलफ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए, सीखने के लिए अगर वो आयत दोहराई तो अब जो है वो सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। और इसकी जो है वो तलफ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए एक एप्लीकेशन भी है, दावत इस्लामी ही की है, iOS पे भी है और एंड्रॉयड पे भी है, जिसमें जो है वो मदनी कायदा ये बिस्सौत यानी इसमें तलफ़ुज़ जैसे अलिफ बा ये सारे तलफ़ुज़ भी हैं उसमें, काफ पुर और ये हा और ये सब हैं मखारिज। सल्लु अलल हबीब। नहीं, दूसरा आपने वो एक और जुज़ का जवाब नहीं दिया कि अगर उसके साथ साथ वो पढ़ रही है सुनकर तो उसका पढ़ना भी दुरुस्त होगा। आप पढ़ने में कोई हरज नहीं है, ठीक अगर वो पढ़ें तो। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।